Hello student, today we are going to learn not-for-profit concern organization accounting. In this chapter we learn meaning and concept related to not-for-profit concern, adjustment and account, which one account we prepare here. Actually there are two types of accounts. There are two types of organization, profit motive organization and service motive organization. सबको पता ही है प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू फाइंड आउट प्रॉफिट and as well as financial position of firm. Same as it is in a not for profit organization, we are preparing some accounts and using that one we find out financial position and income is suitable sufficient for spending expenses. Not-for-profit organization main aim is to give service to its members or to the society at large. They are not formed for making profit. They do not carry any trading activity or manufacturing activity. Sports club, charitable hospital, school, colleges is an example of not-for-profit organization. Meaning, not-for-profit concern are those concern which are not started to earn profit but give qualitative service to its members and society at a minimum charges. The main objective is to provide social service and promote arts, culture, sports, education, etc. The nature of this concern are different from profit organization. In short, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन मोटो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना है. ओके, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. मैंने लास्ट से स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या प्रिपेयर करते हैं तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा ही है. वो क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे हम प्रिपेयर करने वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो वाई वी प्रिपेयर हियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. हमें तो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट हमें ये इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी में हमें जितने भी पैसे खर्चे करने हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पैसे खर्चे करने हैं उसके लिए हमारे पास कोई इनकम, सफिशेंट इनकम है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एवरीबडी नो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली क्या करना है, बिजनेस रन करना है. तो हमें पता तो होना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की क्या है. सो दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर हियर बैलेंस शीट. नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. फर्स्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स एक्टिविटी not for earning profit but give service. Means main feature is what, to provide service. Second, not for profit concerns spend their income on promotion of arts, culture, sports, education, charity and other social activities. This concern prohibited by payment of dividend to their members. सबको याद रहेगा, whatever income they have, that all income they spend on promotion of arts, culture, and social activities, not to give like a dividend. Next, the member interested to do activity of not for profit concern, they become member by paying subscription and entrance fee. किसी भी पर्सन को अगर फर्म का मेंबर होना है तो दैट person paying subscription and entrance fee, but they cannot receive any dividend instead of that.
or return on investments. Then next one, management committee. The managing committee of elected members look after management of not-for-profit concern, and managing committee elect their chairman, secretary, and other persons to run organization. This organization prepare income and expenditure account at the end of the each accounting year to find income is sufficient to meet their expenses, and also prepare balance sheet to find out financial position. Okay, next, capital fund. In the last chapter we learn capital to which one is a finance required for run and execute business. Okay, but here there is no any investment, so how can they run business? So here one more thing is what? Capital fund. Capital fund of organization is made of entrance fees, special donation received from members, and surplus added to capital fund. Whatever res- uh, they have surplus, entrance fees या सब्सक्रिप्शन वॉट एवर दे रिसीव्ड अमाउंट, ये अमाउंट कैपिटल फंड के अंदर वो कंसिडर करने वाले हैं. मतलब मेंबर्स के पास से उन्हें डोनेशन मिला, स्पेशल डोनेशन मिला, एंट्रेंस फीस जो भी है ये कहाँ पे लिखेंगे हम? कैपिटल फंड के अंदर लिखेंगे. एंड एज वेल एज सरप्लस मतलब जैसे कि जो भी उनके पास इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसमें से अगर इनकम अकाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो उस साइड जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज नोन एज अ सरप्लस. तो वो सरप्लस भी कहाँ पे ही दिखेगा? एज अ कैपिटल फंड. ओके, फीचर्स इतने ही हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कंपलसरी याद रखो. नेक्स्ट, इन लास्ट चैप्टर हमें प्रॉब्लम दिया जाता था, किसी भी अकाउंट का दिया जाता तो पहले क्या आता था? ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस आता. यूजिंग ट्रायल बैलेंस वी फाइंड आउट या वी प्रिपेयर trading account, P&L account and balance sheet. Okay, but here they give one receipt and payment account. Receipt and payment account is a summary of cash book and bank book. Everybody know cash book and bank book. For example, कोई भी transaction होता है, then we record it in a journal entry, then after we prepare ledger, then after we prepare trial balance, और we recorded in a subsidiary book. सब्सिडी बुक के अंदर अलग अलग सब्सिडी बुक होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन के. तो यूजिंग दैट वन वी रिकॉर्डेड इन दैट सब्सिडी बुक. उसमें से जो कैश बुक एंड बैंक बुक है उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है दैट कैन बी रिसीट एंड पेमेंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मीन्स सबको पता है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्ड इन अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. Receipt and payment account is a summary of cash and bank transaction for particular period. All receipts show debit side and all payments shows credit side. देखते हैं next types of receipt. Capital receipt. All such receipts are non-recurring nature and not forming a part of regular flow of income is concern are known as कैपिटल रिसीट. इस टाइप के इनकम जो नॉन रिकरिंग है या रेगुलर फ्लो में नहीं है या रेगुलरली रिसीव्ड नहीं होने वाले, दिस टाइप ऑफ इनकम इज नोन एज अ कैपिटल रिसीट. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेस ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट because that one is beneficial for long period of time. Capital receipt means amount received for life membership fees, donation received for building, operation, theater is an example of capital receipt. Then next one, revenue receipt. Such all receipt which are non-recurring nature represent regularly flow of income are known as a revenue receipt. ऐसे जो इनकम जो हमें रेगुलरली मिलने वाले हैं या हम रेगुलर
ली शो करने वाले हैं आवर अकाउंट में, तो दैट टाइप ऑफ इनकम इज नोन एज अ रेवेन्यू रिसीव्ड. फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. Capital expenditure. Capital expenditure. These expenditure are non-recurring expenditure in nature. The benefit of such expenditure are likely to be received for a long period of time. For example, purchase of furniture, land and building. Revenue expenditure. These expenditure are recurring in nature. The benefit of this expenditure is enjoyed immediately. Means which are spent on day-to-day activities. That type of expenditure is known as a revenue expenditure. For example, payment of salary, taxes, rent and telephone charges. Purchase of stationery, we are paying salary, tax, rent. ये सारे एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन नेक्स्ट वन, थर्ड, टाइप्स ऑफ पेमेंट. Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is actually revenue expenditure. Such expenditure is incurred for receiving benefit for more than a year. Expenditure which are basically of revenue nature, but benefit of which are continue for more than 1 year is called deferred revenue expenditure. For example, deferred expenditure if written off, then it proportion of deferred expenditure which are written off to debited income and expenditure account. डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा याद रखना क्या है, ऐसे जो एक्सपेंडिचर है जो हमारे एक्सपेंसेस है बट अभी तक नहीं लगे हैं, लगने वाले हैं, इन फ्यूचर में लगने वाले हैं, अभी तक नहीं लगे हैं, ऐसे जो एक्सपेंडिचर है उन्हें कहा जाता है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, दैट कैन बी रिकॉर्डेड. अगर नहीं लगे तो एसेट साइड, अगर वो राइट ऑफ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें देखना है, मतलब यहाँ पे हमें वो अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हमें वो पता होना चाहिए व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. लिखते समय हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट उसका स्पेसिमिन होगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वन इनकम एक्सपेंडिचर होगा एंड राइट हैंड साइड में इनकम होगा. तो देखते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड revenue expenses of particular period, is similar to profit or loss account, is a nominal account. Not for profit concern prepare income expenditure account. All revenue expenses losses of current year are debited to this account, and all revenue income and gains are recorded to credit side of this account. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये तो आपको पता चला. इन दिस अकाउंट ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम आर रिकॉर्डेड एंड फॉर ओनली करंट ईयर. हमेशा याद रखो करंट ईयर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. इज सिमिलर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. इट इज प्रिपेयर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ओनली. सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ही इसे प्रिपेयर करता है. It does not have any opening balances. Debit balances indicate डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में सारे आपको एक्सपेंसेस दिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम दिखेंगे. हमेशा याद रखो कि वहाँ पे कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिखेगा. जैसे कि हम P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते थे, वैसे यहाँ पे डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो सरप्लस होता है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो डिफिशिएट होता है. याद रहेगा सबको. अगर मतलब इनकम साइड ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर तो डेबिट साइड में जो भी डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज अ सरप्लस. अगर क्रेडिट साइड
क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है, मतलब एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू इनकम ज़्यादा है तो वहाँ पे जो भी डिफरेंस दिखेगा दैट डिफरेंस इज नोन एज अ डिफिशिएंट. लिखते डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट. Receipt and payment account and income and expenditure account. There are first one, types of account. Receipt and payment account is a real account because we recorded here all assets and cash related transactions. So that's why receipt account is a real account. Income and expenditure account is a nominal account because here we recorded all expenses and income. That's why no any assets recorded in an expenditure account. That's why it's a nominal account. Nature is similar to cash book, and income and expenditure is like similar to profit or loss account. Object, uh, receipt and payment account prepare for present summary of cash transaction, and it prepare to find out net result of all income and expenses transactions. Opening balances. Let's start with opening balance. Always remember that one thing. Receipt and payment accounts as a start with the opening balance, opening cash balance and bank balance, as well as bank overdraft balance भी हो सकता है. It has no any opening and closing opening balances. Closing balances. The closing balance represent cash in hand, cash at bank at the end of the given period. Here closing balance represent either surplus or deficit. मतलब जो भी difference दिखेगा that difference is here closing balance. Okay, receipt and payment. All receipt and payment during the current period are recorded in this account. Whatever expense और receipt है और payment है वो current year के यहाँ पे record किए जाते हैं. In the income and expenditure account, only revenue, receipt and revenue expenses are related to current are recorded, not for all. जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम है वही सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं. वहाँ पे एसेट्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब परचेज किए वो भी किए जाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. Next point, non-cash item. Non-cash item are not recorded in receipt and payment account. मतलब credit transaction are not recorded in receipt and payment account. In income and expenditure account, non-cash item like bad debts, depreciation, outstanding expenses are also included. सबको याद रहेगा कि जो भी नॉन कैश आइटम है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं. रिसिट एंड पेमेंट में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं किए जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में किए जाते हैं. ऑल अकाउंट्स, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. दिस and under income expenditure account, this account contain only transaction related to nominal account. The next one, receipt and payment account. It include amount received or amount paid for any period for previous year, current और next year. यहाँ पे पीरियड जो भी रिसीव्ड अमाउंट है वो करंट ईयर की भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है. इन दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू ओनली करंट अकाउंट. यहाँ पे सिर्फ जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ करंट अकाउंट की होगी. बैलेंस शीट. इट नीड नॉट नेसेसरी बैलेंस शीट, बट यहाँ पे क्या है, यूजिंग दैट वन, आफ्टर दैट वन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ये थे डिफरेंस में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या रखना है, टाइप्स याद रखना है, नेचर कैसा है याद रखना है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है, एंड एज वेल एज विच वन आइटम वी रिकॉर्डेड हियर. तो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर क्या रिकॉर्ड किए जाते, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के सारे कैश रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं. इनकम में करंट ईयर के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट ये देखो स्पेसिमिन होगा,
अगर आपको स्पेसिमिन प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है तो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी आपके पास पीडीएफ होगी अकाउंट्स की, उस टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा एग्जैक्ट स्पेसिमिन क्या है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो हमें प्रिपेयर करना है टू फाइंड आउट कि हमारा इनकम सफिशेंट है एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। तो देखो यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं। तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर है एंड क्रेडिट साइड में क्या है, सारे इनकम है। डेबिट साइड में देखो सारे इनकम एक्सपेंसेस कैसे क्या क्या लिखे, एक्सपेंडिचर सैलरी लिखा है, देन वेजेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रेंट, इंटरेस्ट, कन्वे, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन टेलीफोन, मोबाइल एक्सपेंसेस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, then repairs and maintenance, electricity charges, newspapers and periodicals, sundry expenses, loss on sale of assets and जो भी डिफरेंस दिखेगा वो क्या होगा, हमारा सरप्लस। यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस है। वो डिफरेंस मतलब क्या है, सरप्लस है। क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या क्या लिखा है। क्रेडिट साइड में दिखेगा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हाट, हियर वॉट एवर मेम्बरशिप फीस वी रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, जो भी फर्म के मेंबर्स हैं उनके पास से मेंबरशिप फीस हमें रिसीव्ड होने वाली है। एनुअली हो सकती है, मंथली हो सकती है, या कुछ पीरियड के लिए हो सकती है, वो है हमारे लिए सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, दैट्स वाई इनकम साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे। वो बात सारी एडजस्टमेंट और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट ओनली आई वी रीड विच वन पर्टिकुलर हियर। Then rent received, interest received, dividend received, government grants, ground rent, sundry receipt, entrance fees, admission fees, donation, profit on sale of assets एंड डिफिशिएट क्या है, लास्ट वन बैलेंस है जो हमें डिफरेंस दिखाने वाला है। मतलब इनकम साइड डिफरेंस आता है तो डिफिशिएट, एंड एक्सपेंडिचर साइड अगर डिफरेंस आता है तो सरप्लस। आप एक बार चेक कर सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर कि एग्जैक्ट उसका स्पेसिमिन क्या है। नेक्स्ट स्पेसिमिन दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट वन स्पेसिमिन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबको पता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखी जाती हैं एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं हम, एसेट्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वन है कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा, जो भी उसके अंदर ऐड होंगे डोनेशन, एंट्रेंस फीस या सरप्लस। डिफिशिएट है तो क्या होगा, लेस होगा। देन बिल्डिंग फंड होगा, बिल्डिंग के लिए जो भी फंड है वो भी क्या यहाँ पे लायबिलिटी होगी। देन एम्पावरमेंट फंड होगी, एंडाउमेंट फंड भी होगा, टूर्नामेंट फंड होगा, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी यहाँ पे लिखे जाते हैं। एसेट साइड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लेग्राउंड मतलब उनका खुद का उनका खुद का ग्राउंड होगा, दैट्स वाई वो उनके लिए क्या है, एसेट्स है, स्पोर्ट्स क्लब के लिए। मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी के बुक भी क्या हो सकते हैं उस लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी भी क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट है या मतलब एनजीओ है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स वाई उनके लिए लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक्स है वो भी उनके लिए क्या होंगे, एसेट्स। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, अभी यहाँ पे ड्रग्स मतलब क्या है, मेडिकल फर्म के लिए है, तो मेडिकल फर्म के अंदर उनके जो भी मेडिसिन्स होते हैं वो उनके लिए क्या कहा जाता है, ड्रग्स, तो वो ड्रग्स उनके लिए स्टॉक है, तो वो स्टॉक उनके लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। लोन्स एंड एडवांस गिवन, इंटरेस्ट अभी तक पेंडिंग है या प्री रिसीव्ड है, प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सारे लिखे जाते हैं बैलेंस शीट साइड। एक बार फिर से देखो क्या क्या है वहाँ पे, कैपिटल है, देन बिल्डिंग फंड है, एंडाउमेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड है,
special fund, charity fund, sundry creditors, bank overdraft, other loan, outstanding expenses, pre-received income, लाइफ मेंबरशिप फीस. यहाँ पे मोस्टली हमारे पहचान के हैं, बट प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी बुक एंड ड्रग्स ये अलग थे. इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट, अभी मेन कंसेप्ट हमें याद रखने हैं रिलेटेड टू एनपीओ. ओके, फर्स्ट वन कंसेप्ट है यहाँ पे कैपिटल फंड. कैपिटल फंड के बारे में बहुत सारी एडजस्टमेंट या उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी आते ही है, तो आपको याद रखना है. फंड इज क्रिएटेड फॉर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आउट ऑफ कैपिटल इनकम एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस. कैपिटलाइजेशन करना मतलब इसे कैपिटल में कन्वर्ट करना. मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, डोनेशन एंड बाय एडिंग सरप्लस एंड डिडक्टिंग डिफिशिएंट. अभी कैपिटल फंड मतलब मैंने बताया ही है कि जो भी मेंबर के पास से हमें पैसे रिसीव्ड होने वाले हैं, जैसे कि डोनेशन हो, लाइफ मेंबरशिप फीस हो, ये सब कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे लिखते हैं हम, कैपिटल फंड के अंदर लिखते हैं. एंड एज वेल एज हमें सरप्लस होता है या डिफिशिएंट होता है, वो भी कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल फंड के अंदर. कैपिटल फंड का अगर हमें फॉर्मूला देखना है या इक्वेशन देखना है, तो इक्वेशन होगा, जैसे कि कैपिटल का इक्वेशन क्या था, कैपिटल का इक्वेशन सबको याद रहेगा, क्या था, कैपिटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी. वैसे ही यहाँ पे कैपिटल फंड का भी क्या है, फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. याद रहेगा सबको, सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या है कैपिटल फंड का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. ओके, और कैपिटल फंड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट देखते हैं एंट्रेंस फीस. फीस रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम पर्सन हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर एट द टाइम ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस. मतलब कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए वो एंट्री के लिए जो भी पैसे देता है, दैट अमाउंट इज नोन एज एंट्रेंस फीस. ओके, याद रहेगा सबको. दैट कैन बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बट कोई भी एंट्रेंस फी अगर कैपिटलाइज होती है, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट होता है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, एड अंडर कैपिटल फंड. बट बाय डिफॉल्ट वी रिकॉर्डेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. सबको यह समझ में आया. एंट्रेंस फीस मतलब क्या है, whatever amount we receive from members to enter in a business or organization, that fees is known as entrance fees. Next देखते हैं subscription. The periodical payment made by member of not-for-profit concern to maintain his membership is called subscription. Subscription मतलब periodically amount received from members to maintain their membership, या उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए वो जो भी मंथली या पीरियडिकली, मंथली, 6 मंथली या ईयरली जो भी अमाउंट पे करते हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन. जैसे कि मुझे कोई भी क्लब का मेंबर्स होना है, क्लब हेल्थ क्लब का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ क्लब कोई भी एक एग्जांपल है कि वहाँ पे मुझे मेंबर होना है, तो मुझे मंथली कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है. ओके, मंथली कुछ 5000 पे करो या 500 पे करो, तो वो क्या है, सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मतलब सबको पता चला, मेरी मेंबरशिप कंटिन्यू रखने के लिए, एंट्री करने के लिए मैंने एंट्रेंस फी की थी, वो अलग है. बट अभी मुझे मेरा मेंबरशिप कंटिन्यू रखना है ईयर टू ईयर, तो उसके लिए मैं पीरियडिकली जो भी अमाउंट पे करने वाली हूँ, दैट इज नोन एज अ सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट वन है legacies. Any gift or donation given by person to not for profit concern as per his will is called legacies. After the date of donor, such gift or donation given by his or her
a legal representative to not-for-profit concern is known as a legas. And legacies are shows बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सबको याद रहेगा लीगैसिस मतलब लीगैसी मीन्स व्हाट. यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्सन उसके विल से उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अमाउंट पे करता है आफ्टर हिज डेथ. आफ्टर हिज डेथ सबको याद रखना ज़रूरी है. कोई भी नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी अमाउंट रिसीव होती है या मिलती है कि जो भी पर्सन है उसने खुद के विल से दिए है या खुद की इच्छा से दी है, बट आफ्टर डेथ दिए, उसके डेथ दिए है, तो दैट इज नोन एज अ लेगेसी. सबको याद रहेगा. इज अ गिफ्ट और डोनेशन गिवन बाय पर्सन टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एज पर हिज विल बट आफ्टर डेथ. और वो दे सकता है, उसका लीगल हेयर होगा या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो देता है. देन नेक्स्ट वन, लाइफ मेंबरशिप फीस. Fees received by not-for-profit concern from person who wants to become a life member of organization. लाइफ टाइम मेंबर होना है उसे ऑर्गेनाइजेशन का, इसीलिए वो लाइफ टाइम मेंबर के लिए जो भी फीस पे करता है इज नोन एज लाइफ मेंबरशिप फी. It is paid by person once lifetime. Life membership is non-recurring income. If life membership is capitalized, then is added to capital firm. और capitalize होते तो कहाँ पे होगी? capital firm. नहीं है तो कहाँ पे लिखेंगे? income and expenditure account credit side. Next, sale of old asset. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर है, कोई स्क्रैप एसेट है, वो सेल करते हैं, तो वो भी लिखना है ज़रूरी है. यहाँ पे पता होगा आपको क्या है. द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एसेट और न्यूज़पेपर और स्क्रैप इज कंसिडर रेवेन्यू इनकम दैट कैन बी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, सबको याद रहेगा. सेल ऑफ ओल्ड एसेट और न्यूज़पेपर जो भी सोल्ड करने वाले हैं तो उसे कंसिडर किया जाता है रेवेन्यू इनकम. दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देन देखते हैं डोनेशन. डोनेशन के दो टाइप्स है, स्पेशल डोनेशन एंड जनरल डोनेशन. देखते हैं पहले स्पेशल डोनेशन. डोनेशन रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन. The amount received for specific donations is shown liability side of balance sheet. Specific purpose के लिए हमें जो भी donation received हुए, that donation is known as specific donation. जैसे कि for example कोई फेस्टिवल वहाँ पे रन करना है, तो उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए की, जैसे कि अखिल भारतीय परिषद लेनी है, तो उसके लिए जो भी हमें डोनेशन रिसीव्ड होने वाले हैं, ओके, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए होने वाले, तो दैट टाइप ऑफ डोनेशन इज नोन एज अ स्पेसिफिक डोनेशन. जनरल डोनेशन, डोनेशन मतलब जनरल पर्पस के लिए जो भी डोनेशन रिसीव होते हैं, तो दैट इज नोन एज अ जनरल डोनेशन. डोनेशन रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड और जनरल डोनेशन. अमाउंट रिसीव्ड बाय फॉर general donation is credited to income expenditure account because the amount received for general donation is treated as revenue income. याद रहेगा. The next one देखते हैं funds. फंड्स में स्पेसिफिक फंड्स है एंड एंडाउमेंट फंड्स है, जो हमने पढ़ा था बैलेंस शीट में, हमें दिखा था एक बैलेंस लायबिलिटी साइड एंडाउमेंट फंड. देखते हैं फर्स्ट वन स्पेसिफिक फंड. The fund which is created for specific purpose is called specific fund. Specific fund is shown liability side. And next one, endowment fund. The fund which is created and invested in some security to earn regular income in the form of interest to be used for specific purpose is called endowment fund. Endowment fund show liability side.
द फंड विच इज़ क्रिएटेड एंड इन्वेस्ट इन सम सिक्योरिटी एंड रेगुलरली हमें हुआ जैसे इंटरेस्ट थ्रू आउट हमें इनकम होने वाला है, तो दैट टाइप ऑफ फंड इज नोन एज अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई तो इन्वेस्टमेंट की है या फंड ऐसे क्रिएट किए, उससे हमें रेगुलरली क्या होने वाला है, इनकम रिसीव्ड होने वाला है थ्रू आउट द इंटरेस्ट, तो उसे कहा जाता है एंडोमेंट फंड। ओके, नेक्स्ट ये कंसेप्ट कंपल्सरी याद रखने। एडजस्टमेंट देखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट आते हैं। इसमें फर्स्ट वन एडजस्टमेंट देखिए कि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब सबको पता ही है ऑलरेडी, फिर भी एक बार बताती हूँ, वॉट एवर एक्सपेंसेस इज ड्यू और अनपेड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, मीन्स अनपेड एक्सपेंसेस है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट आता है अनपेड है, तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्टली फाइंड आउट या इनकम और एक्सपेंसेस करेक्टली फाइंड आउट करने के लिए हमें वो करंट ईयर में दिखाने पड़ेंगे। दैट्स वाई उसका फर्स्ट इफेक्ट होता है एड अंडर दैट एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेम एज इट इज जो हमने लास्ट अकाउंट में किया था वैसे ही होगा, उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा ऐड होगा उस एक्सपेंसेस के अंदर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हो गए इस एक्सपेंसेस के अंदर ऐड, और दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस है मतलब एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, ओके, या पोस्टपेड एक्सपेंसेस है तो उसे कहा जाता है प्रीपेड, सॉरी पेड पहले से ही पे किए तो उसे कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उसके दो इफेक्ट फिर से सेम एज इट इज दैट कैन बी नेक्स्ट ईयर के है, दैट्स वाई वी लेस फ्रॉम दैट एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, बिकॉज कोई भी एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करते तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब अभी तक हमें हमारा इनकम हमें मिलना है बट अब तक रिसीव नहीं हुआ है, तो दिस नॉट रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल बट येट नॉट रिसीव्ड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम, तो उसका भी इफेक्ट होगा यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम, यस सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो ऐसे भी हो सकता है एक आध मेंबर अब उस ईयर में हमें पैसे ही नहीं दिए उसने, जो भी मंथली हो गए या एनुअली इनकम होगा उनके उसके पास से जो भी अमाउंट आने वाली है वो उसने नहीं दी है, तो वो इनकम आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होता है उस एक्सपेंसेस के अंदर ऐड। हमेशा याद रखो कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, वो क्या होता है उस एक्सपेंसेस या इनकम के अंदर ऐड। दूसरा इफेक्ट होगा यहाँ पे इनकम आउटस्टैंडिंग है, दैट्स वाई उसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, याद रहेगा सबको। यहाँ पे इनकम आउटस्टैंडिंग है दैट्स वाई उसका सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, ओके, एडवांस में पैसे मिले अभी हमें, मतलब सब्सक्रिप्शन उसने क्या किया है पूरे अगले 2 साल का एट अ टाइम इसी ईयर में पे किया है, तो उसे कहेंगे प्री रिसीव्ड इनकम। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा दैट कैन बी नेक्स्ट ईयर का है, दैट्स वाई लेस फ्रॉम दैट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी इनकम होगा उसमें से क्या होगा वो लेस करना होगा। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सबको याद रहेगा पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इनकम एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी वो डिटेल में पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या है। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियडिकल मतलब 6 मंथ के लिए, एनुअली या मंथली। ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन सिर्फ याद रखो, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर या प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में भी रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड किया होगा, नेक्स्ट ईयर का भी करंट ईयर में दिख सकता है, या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस टाइप के हमें एडजस्टमेंट पूछने वाले। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो भी हो सकता है अकाउंट में, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो भी करंट ईयर में करंट ईयर में रिसीव हुआ है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ, या करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है या अनपेड है, इस टाइप के हमें एडजस्टमेंट होगी। ये चारों टाइप के हमें एडजस्टमेंट फोकस करना है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आते ही है और उससे मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स एवरीबडी नो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ऐसे जो एक्सपेंसेस या एसेट्स यूज़ करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है वो हम कैलकुलेट करते हैं, कॉज ऑफ वेयरिंग एंड टेयरिंग वी कैलकुलेट सम अमाउंट, तो दैट अमाउंट इज नोन एज डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन मतलब हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, दैट्स वाई उसका पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम दैट एसेट एंड सेकेंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब मैंने आपको बताया था, फीस पेड बाय पर्सन टू एंटेन बिकम अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या एंट्री करने के लिए जो अमाउंट पे करता है तो दैट इज नोन एज ए एंट्रेंस फी। अगर वो कैपिटलाइज होता है तो कैपिटल के अंदर ऐड एंड लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हम लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर वो कैपिटलाइज होता है तो उसमें से वो लेस होगा, और दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल फंड के अंदर ऐड। कैपिटल फंड कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट होते हैं, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आती है तो देखो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन करना है। पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसके अंदर जो भी करंट ईयर के परचेसेस है वो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, एंड लेस होगा जो क्लोजिंग बैलेंस, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड को जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिया वो हमें क्या करना है, लेस, और आफ्टर दैट वॉट एवर अमाउंट वी गॉट इज व्हाट स्टेशनरी कंज्यूम। उसका पहला इफेक्ट होगा डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। बट मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे किसके ऊपर, स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर या मेडिसिन या ड्रग्स के ऊपर, ये जितने भी ये तीनों हैं उनके रिलेटेड ही इस टाइप की एडजस्टमेंट होती है। तो एडजस्टमेंट डिटेल देखते जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो। थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, आपको एग्जैक्टली आंसर मिलेंगे इसके क्या है।